In chapter 2 is the polynomials. In 9th class also you study about linear polynomial. Linear polynomial means whose highest power is 1, like 4x plus 2, and highest power 1 is known as linear polynomial, and power is known as the degree of polynomial. जो इसकी power होगी वो degree कहलाएगी. And these are some expression which not representing the polynomial. जैसे 1/x-1 वेरिएबल टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में है, रूट में है, सेम फ्रैक्शन है. पावर अगर नेगेटिव में है, वेरिएबल में, रूट में है, फ्रैक्शन में, इट मीन्स इज नॉट द polynomial. They are not the polynomial. And whose polynomial degree is 1 is known as linear polynomial, and whose degree is 2 is known as quadratic polynomial. Linear polynomial you have done in 9th class. Now in this chapter we will study about the quadratic also, quadratic polynomial, and the whose highest degree is 3 is cubic polynomial. And in quadratic, what is the standard form of quadratic? Quadratic means ax square plus bx plus c. This is known as the quadratic form. This is the standard form of quadratic. And coefficient of x square is known as a, coefficient of x is b, and constant term, this is known as the constant term. And what is the meaning of zeros of polynomial? Zeros of polynomial means if you have put any value, like suppose this polynomial is given, it is given in term of x. If you are taking any value of x put in this equation and answer is 0, it means that is the zeros of that polynomial. Suppose if we put -1 in this equation, जैसे इसमें -1 को इसको पुट किया, पुट करने से सॉल्व करने से आंसर 0 आ गया, इट मीन्स -1 इज द जीरो ऑफ दिस polynomial. Now in this chapter we discuss quadratic, but first if the polynomial is given in a linear, like this y is equal to ax plus b, this is a linear. If it linear polynomial, it show the linear equation, linear graph, linear graphs को represent करेगा. But in quadratic, if it is a quadratic polynomial, it representing parabolas. इसमें जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला शेप में होगा. If it is a quadratic like that, और ये दोनों शेप्स हो सकती हैं पैराबोलिक, टू शेप, ओपन अपवर्ड and open downward. It depending on their value of a. If a is greater than 0 or a is less than 0, and this is known as parabolas. Now chapter 2 we discuss about quadratic polynomial, but in first exercise you just write the answers on this exercise on your book. And what is the meaning of this question, what given in this question? The graph of y means आपको इसमें कुछ ग्राफ की पिक्स दे रखी हैं और आपको इसमें ये बताना है सेम पोलिनोमियल पी एक्स दिस एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़. फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स हाउ कैन यू फाइंड यूजिंग द ग्राफ द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. लेट्स सी, दिस इज़ नॉन एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड कार्टेशियन प्लेन, एंड दिस इज़ अवर ग्राफ लाइन. ये आपकी ग्राफ लाइन है. चेक दिस लाइन इंटरसेक्टेड एक्स और नॉट. आपने जो ग्राफ लाइन है वो चेक करनी है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करी मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरो 0 हो गई इसमें. और ये आपकी ग्राफ है. अब इसमें ये ग्राफ है और इसमें ये लाइन, ये जो ग्राफ की इक्वेशन आपको सॉरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इसमें एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1. और इसमें 1 2 3 एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करे तो 3 ज़ीरोज़. एंड नेक्स्ट 2 पॉइंट 2 ज़ीरोज़. नेक्स्ट 1 2 3 4 ज़ीरोज़. एंड नेक्स्ट 1 2 3. जस्ट सी द ग्राफ एंड टेल नंबर ऑफ ज़ीरोज़. एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करे दैट इज़ नोन एज नंबर ऑफ ज़ीरोज़. नाउ इन 2.2 exercise, 2 questions are there. First question, find the zeros of following quadratic polynomial and verify the relation. एक तो इसमें ज़ीरो फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक में और इसको फिर वेरीफाई भी करना है. How can you solve quadratic equation in 9th class and 8th class also you have done using the middle term split method, or you can make the factor of these number. You check if it is a quadratic. First is x square minus 2x minus 8, it's a quadratic form. फाइंड ज़ीरो मीन्स आपने पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स से एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, दैट नोन एज द ज़ीरोज़. जो एक्स की वैल्यू आएगी वो ज़ीरोज़ कहलाएंगी.
First, make prime factorization method, middle term split method. In middle term split method, you solve it. Factor will become x plus 2, x minus 4, x plus 2 is equal to 0, so value of x is minus 2, x minus 4 is equal to 0, x minus 4 0 means x is equal to 4. जो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करेगी, एक बीटा को. अल्फ़ा और बीटा हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरोज़ के लिए. अल्फ़ा बीटा मीन्स दे नोन एज द ज़ीरोज़. एक नेम दे दिया, इट्स ए सिंबल रिप्रेजेंटिंग द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल. अब वेरिफिकेशंस के लिए हम इसमें वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक को वेरिफिकेशन करनी है, एक सम एक प्रोडक्ट. सम मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़, एक अल्फ़ा एक बीटा को रिप्रेजेंट करें मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़, और प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा. और क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा सम होता है माइनस बी बाय ए. अब माइनस बी मीन्स अभी हमने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था ए एक्स स्केयर माइनस बी एक्स प्लस सी. एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी. तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मीन्स ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 और एक्स का -2, तो बी वैल्यू हो गई आपकी -2 और कांस्टेंट टर्म आपका हो गया -8. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वेरिफिकेशन. सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी बाई ए. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पहले जो दो जीरोज़ आए हैं उसको सॉल्व करो. -2 + 4 = 2. अब माइनस बी ये आपने इक्वेशन से चेक करनी है, बी की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे पुट करेंगे. और ए कितना है 1, तो माइनस -2 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. इट्स आंसर इज़ 2. द बोथ आर सेम. एंड नाउ चेक द प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट चेक करेंगे. -2 × 4 इज़ -8 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट इज सी बाई ए. तो सी चेक करो कितना है -8 और ए कितना है 1. -8/1. अगर आपको इसमें चेक करने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप इसको स्टार्टिंग में लिख भी सकते हो. वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, वैल्यू ऑफ बी इज़ -2, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे. जो नेगेटिव का साइन है वो साथ में ही लेना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन यू फाइंड zeros and verify? Second and sixth same like that. First you find the factors, after that you find zeros using the middle term split method, and third also, but it's first convert into a standard form क्योंकि x के बाद x आना चाहिए. 3 है, 3 को पीछे शिफ्ट कर दो. एंड क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 स्केयर प्लस 8u एंड 5th t² -15. अब इसमें आपको थर्ड टर्म गिवन नहीं है, तो थर्ड टर्म गिवन नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. 4u² प्लस 8, इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगा सकते क्योंकि कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है. तो इसमें से कॉमन ले लो. 4u कॉमन ले लिया, u + 2. एक बार 4u 0 के इक्वल हो जाएगा, एक बार u + 2 0 के इक्वल. तो अल्फ़ा हो गया 0, बीटा हो गया -2. सेम आफ्टर दैट वेरिफिकेशन यू सॉल्व. अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + -2 इज़ -2, माइनस बी बाई ए इट्स -2 and product alpha into beta c by a. And next part, how can you make the factor, how can you find the zeros, क्योंकि इसमें तो कॉमन भी नहीं आ रहा और मिडल टर्म फैक्टर्स मेथड भी नहीं लगेगा. तो इसमें हम क्या करें, ये t² है, माइनस का साइन है, तो 15 के ऊपर रूट लगाकर स्क्वेयर कर दो. तो a² - b² आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. a + b, a - b, इससे आपके दो फैक्टर्स हो जाएंगे. तो एक वैल्यू आएगी -√15, एक आएगी +√15. तो जो एक अल्फ़ा को रिप्रेजेंट करेगा, एक बीटा. एंड आफ्टर दैट यू चेक फॉर वेरिफिकेशन. अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0 माइनस बी बाई ए. अब इसमें b आप चेक करो. b मीन्स t की वैल्यू गिवन ही नहीं है, t इसमें गिवन नहीं है, तो t यानी b की वैल्यू हम 0 लेंगे. इसमें कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो c की वैल्यू 0 लेंगे. एंड प्रोडक्ट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इन c बाई ए. नाउ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन. Rest you solve yourself like that. First find the zeros and after that the verification, and in verification sum and product both you have done. And next question, find the quadratic polynomial each with given number as the sum of product. अब इसमें जो आपको नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंड नंबर प्रोडक्ट को. सम और प्रोडक्ट मीन्स क्या है, सपोज आपको अगर दो नंबर दे रखे हैं, ये दोनों अगर ज़ीरोज़ हैं तो अगर हमने इसका सम निकालना है मीन्स एक अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + 3 कितना हो गया, सम 5 हो गया. अब क्वेश्चन में आपको ज़ीरोज़ नहीं दे रखे, सम यानी ये आपको 5 गिवन है. और प्रोडक्ट का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 2 × 3 6.
तो सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है, अगर सम प्रोडक्ट गिवन नहीं है, जीरोस गिवन है तो सम प्रोडक्ट निकालेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। फर्स्ट नंबर सम को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड प्रोडक्ट को। सारे क्वेश्चन सेम है, एक पार्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी सारे पार्ट आपने सेम ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, सम ऑफ ज़ीरो, पी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सम आपको गिवन है 1/4, प्रोडक्ट आपको गिवन है -1। राइट दिस फार्मूला, पुट देयर वैल्यूज, सम की वैल्यू पुट कर दो, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दो, फ्रैक्शन में एलसीएम ले लो। अब इसमें एलसीएम में ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जो आगे हमने पार्ट एलसीएम पार्ट लिया आप उसको हटा सकती हैं, ये दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेन हमने इसमें क्या करना था, सम प्रोडक्ट गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके साथ अगर आप चाहो तो कांस्टेंट टर्म के भी ले सकते हैं। अगर आप कांस्टेंट टर्म के लेंगे साथ में तो वो के भी साथ कॉमन रहेगा और लास्ट में ये भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। सो इट्स बिकम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम लाइक दैट you solve all part. Now today you complete 2.2 exercise.